پیچھے چلے جائے آپ دور چلے سنی علماء کونسل سنی علماء کونسل جناب بشارت ثقافی صاحب جناب بشارت ثقافی صاحب اگر چلتے آپ آگے 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 آرام سے یہ گاڑی میں رکھ دے نیچے دے فون میں دے مولانا بشارت ثقافی صاحب راستہ جو گاڑی کام کرتے ہیں حضرت بولیں گے نا سب بولیں گے سب بول سب ادھر آئے حضرت ادھر آ جائیں آپ ادھر علی میں سب یہ پکڑے ہیں اب بیچ میں آ گئے
ہاں آپ لوگ پیچھے آ جائیں نا, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, سارے پیچھے آ جائیں, اس طرف آ جاؤ سارے, ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. تھوڑا پیچھے کر کے تھوڑا پیچھے ایسے رکھتا ہے. ہم تھوڑا پیچھے کرم تھوڑا محفل کے بارے میں بتائیے. جو ایک منٹ رکنا. اوہ صحیح صاحب کو سمجھیے تھوڑے ایسے اب بولیں, شروع اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ محفل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام جموں کشمیر کی ایک رجسٹرڈ تنظیم سنی علماء کونسل جموں کشمیر, جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے وجود میں آئی, اس تنظیم کے روح رواں اور اصلی محرک جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں, عزیزم علامہ مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. حافظ قرآن ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, اور پھر اس پر بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ بہت سارے علوم کے اوپر عبور بھی رکھتے ہیں, بہت ساری زبانوں پر ان کو ملکہ بھی حاصل ہے. میں ایک بات وضاحت کرتے ہوئے ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں سہ روزہ عظیم الشان کانفرنس, سیرت النبی کانفرنس منعقد ہوئی تھی, جس میں محبت رسول سیرت رسول کانفرنس پونچھ میں منعقد ہوئی تھی, جو قبلہ سید عارف صاحب کی زیر صدارت تھی, اور اس میں تمام پونچھ رجوری جموں تک کے ہمارے ڈویژن نہیں بلکہ پوری اسٹیٹ کے علماء شامل تھے. اس میں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے مبلغین تشریف لائے تھے. ہندوستان کی بڑی بڑی ہستیاں جو ہماری سنی تنظیم کے مبلغین وہاں موجود تھے. وہاں جو عربی علماء کرام کانفرنس میں تشریف لائے تھے, ان کی ترجمانی کے لیے جو شخصیت منتخب کی گئی تھی وہ علامہ بشارت حسین ثقافی صاحب تھے, اور انہوں نے ترجمانی کا پورا حق ادا کیا. اور ہمارے مرکزی علماء کرام میں علامہ صغیر صاحب اور بہت سارے علماء جو وہاں سید عارف شاہ صاحب قبلہ جو صدر محفل تھے, انہوں نے اس چیز کی داد تحسین دی کہ اللہ کرے بشارت ثقافی کو اللہ اور برکتیں دے. ہماری دعائیں ان کے شامل حال ہیں کہ انہوں نے آج ترجمانی کا حق ادا کر دیا. آج ہمیں بھی اس چیز کا فخر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے عزیز جہاں دینی علوم پر دسترس رکھتے ہیں, وہاں عصری تعلیم سے بھی پورے طریقے سے واقف ہیں. اور اسی نظریے کے مطابق انہوں نے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سرزمین پونچھ رجوری میں سب سے پہلے کانفرنس جو جامع معین السنہ ڈنگلا میں انہوں نے منعقد کی, ایک تاریخ ساز کانفرنس تھی, جس تاریخ ساز کانفرنس میں بڑے بڑے علماء کرام
सईद आरिफ साहब किबला की सदारत में वो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हिंदुस्तान के बैनुल अक़वामी शख्सियत मानी हुई शख्सियत अल्लामा शहर यार खान डॉक्टर तशरीफ़ लाए और बहुत सारे उलमाए कराम वहाँ तशरीफ़ लाए। किबला हमारे अल्लामा दाऊदी साहब तशरीफ़ लाए और सब ने अकाबरीन उलमा ने इस बात की तस्दीक की कि जो काम सकाफ़ी साहब ने किया ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है और सब ने अपनी मुबारक ज़ुबानों से इनको दुआएं दी। आज हमें एक बात की नई बात की खुशी हुई कि सकाफ़ी साहब हमारे यहाँ से बम्बई तशरीफ़ ले गए, तंजीम की दावत पर पहुँचे और वहाँ की हिंदुस्तान की एक जानी मानी जो इल्मी अदबी एक तंजीम है, उस तंजीम ने आपको बेहतरीन मुअल्लिम का, बेहतरीन टीचर का, बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड दिया है। हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है, हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है। हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में सबसे पहले हिंदुस्तान से अगर कोई अवार्ड अगर तालीमी तौर पर मिला है वो शख्सियत है बिशारत सकाफ़ी साहब की। आज हम मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, उलमा की वसातत से हमारे मेंढर डिवीज़न के जितने भी उलमाए कराम हैं यहाँ जड़न वाली गली में आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ हम हाजिर हुए। सारी तंजीम को इस बात की खुशी है कि हम मेंढर तंजीम की वसातत से पूरी जम्मू कश्मीर सुन्नी उलमा काउंसिल के जितने भी अरकान, जितने मेंबरान और जितने भी मुआमिनीन हजरात हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हजरात हैं, सबको हम आज की इस मीटिंग में मुबारकबाद देते हैं कि हम सब के लिए एक मुबारक है कि हमारा अजीज़ बिशारत सकाफ़ी साहब अल्लाह ताला इनको आने वाले वक्त में और ज़्यादा चमक धमक से और कौम की खिदमत करने के लिए, इस्लाम की दीन की खिदमत करने के लिए और इल्मी मैदान में अगर उतरे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। और जमात को इनके साथ, चूँकि ये सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और उस एतबार से मुझे पूरा यकीन है कि सुन्नी उलमा काउंसिल अपने पाँव इतने मजबूत कर चुकी है कि वो सिर्फ आप पूंछ तक नहीं बल्कि अल्लाह के फजल करम से बम्बई तक भी, हमारा ये बरेली शरीफ से लेके बम्बई तक, दिल्ली तक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे इस तंजीम के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर तामल करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इस वक्त बड़ी ख़ुशी का ये मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुझे मुंबई की सरज़मीन पर 25 जून 2022 को ग्लोबल ट्रम्प फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट एजुकेटर एवार्ड से नवाजा गया। और इस वक्त मैं अपने ज़िला पुंछ के जड़माली के मकाम पे इस वक्त अपने उलमा के इस काफ़िले के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त यहाँ पे हमारी सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी साहब और डिवीज़न मेंढर के सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर हज़रत अल्लामा सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहब और उनके साथ जितने हमारे डिवीज़न मेंढर के ज़िम्मेदार उलमा इकराम हैं, अवाम हैं, उन सब ने यहाँ पहुँचने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा। मैं इसके लिए अपने इन तमाम उलमा का, इन तमाम ज़िम्मेदारान का और इस पूरी आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस एवार्ड के मिलने के बाद अपने ज़िला में पहुँचने के बाद यहाँ पर बड़े जोश के साथ और जज्बे के साथ मुझे नवाजा और यहाँ पे इस्तकबाल किया। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन, अपने मुल्क और अपनी रियासत और अपनी आवाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और इस वक्त चूँकि आज का दौर जो है ये एजुकेशन का दौर है और तालीम के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं, इसलिए मैं इस मौके पर अपनी पूरी कौम को
उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस और बिलउमूम सारे अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम ही सब कुछ है और तालीम के मैदान में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और इस एजुकेशन की फील्ड में, तालीम के मैदान में थोड़ा बहुत काम करने की वजह से हमें जो इस वक्त हिंदुस्तान लेवल पर ये अवार्ड मिला और बड़ी खुशी हमारे साथियों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे उलमा को हुई है। मैं इसके लिए आप सब का, इन तमाम उलमा का, अपनी आवाम का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा महब्बत का यहाँ इजहार किया और बहुत बड़ी तादाद में हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब की क़ियादत में और हज़रत अल्लामा सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहब की सियादत और सदारत में यहाँ जड़ वाले मकाम पर पहुँच कर मुझे आप हज़रात ने हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बयान बेशुमार। बहुत बहुत शुक्रिया जी।